And up close and personal में first I would love to introduce you to Izyana Umair जो कि 7 साल की हैं from Karachi and she's made history by becoming the Pakistan youngest concept artist and story writer. Welcome to the show Izyana. Thank you. How are you doing? I'm doing fine. Great. और फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अनाया उमेर से जो कि youngest author of Pakistan है at just 13 years old. Welcome to the show. How are you doing? I'm fine. Great. Okay. तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे बेसिकली अबाउट हाउ इज़ इट कि आप लोगों ने लिटरेचर और आर्ट के अंदर इतना अच्छा लिखा. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद यू. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर बुक. और बुक का नाम क्या है? रील टू रिवील. मेरी बुक का नाम है रील टू रिवील एंड दिस बुक इज बेस्ड ऑन मेंटोरशिप एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेंटोरशिप ऑन लाइफ. In this book, I wrote all about my own life stories, and there's one chapter, Tale of Two Wombs, and that's my favorite. Really? Why? Tell us why is it your favorite? Because in that I've wrote all my theories and all my researches, like a little bit of my researches because. और वो research क्या थी? Yes, like I visited a kindergarten and I saw that some students were participating very actively and some were not. So I asked the teacher. So their teacher said their parents don't give them time. Their parents are on work always, and that's why these children are not confident. On the other hand, the children who were living with their grandparents, living with their parents, they were so confident and so energetic. And like from the beginning of the life, from the end of the life to the graveyard. I also went to the graveyard and researched for 2 weeks. And I saw that only 10 to 20% of the graves were having water and flowers every day. Only 10-20% graves? Yes. Achha. And also that the people who did something in their life for others and not for themselves, for others also, helping others and doing nice for others. So always people लोग तभी आके विजिट करते हैं जब उनको पता हो कि आप अपनी जिंदगी में रहते हुए किसी का ध्यान रखते हो. और ये कितना अच्छा लेसन आपने सीखा इतनी कम उम्र में, right? And Izyana, what about you? Tell me a little bit about your book. My book. Show us the book first. My book name is Read Color Trace. Okay. In it, there are so many stories. One story is my favorite. And in which one? Tell me. The first one. It's this one. One second. What page is it? Tell us. Cat, Dog, and Friends. Ah, that one. Okay. Cat, Dog, and Friends. Story 1. Okay, fine. Tell us about it. Tell us about the story. One day, me and my friend were playing in the park. We were playing, running, jumping. Oh. Okay, I'll just show this to the audience also. Aap bolti raho? Haan. I said to my friend, wait, stop. I'll go to the corner of the park and said the dog. Okay. And said the man that take your dog away because the mother cat was afraid of the dog. Yeah. तो मैंने उनको बोला कि आप अपने डॉग को हटा लें यहाँ से हटा लें ताकि कैट्स आराम से डरे नहीं, बिल्कुल आराम से रह सके. आप अपने डॉग के साथ खेलो, भले आप खेलो अपने डॉग के साथ, मगर उस जगह पे खेलो जहाँ पे आप दूसरे एनिमल्स को हर्ट नहीं हो. Wow, that's very thoughtful. So do you have cats and dogs at home? No. But do you want to have a cat and a dog? I want a kitten, but I play with kittens. I play with kittens. Parks में जाके खेलती हो? Yes. So that inspired you to write a story about them? How cute. I go in the park and I sit in a bench in a peaceful environment and then I write stories. Wow, amazing is that. तो आप लोग games वगैरह भी खेलते हो कि हमेशा से सिर्फ stories का शौक है? We also do some playtime. We also watch some videos, and in our free time we don't waste it by watching reels and like this. The title of my book is also Reel to Reveal. So you can take this in 2 meanings. But first, I'm gonna tell you that we watch phone, but when we like travel, so while traveling, we always observe something new.
like when we start observing, so like we observe this story, and if we start observing, so you can hear lots of stories of her and lots of stories of me. Like when I observed my grandfather doing something at the corner of the wedding hall, like it was like this, that we went in the wedding or something, and then my grandfather saw that oh, यहाँ से तो smell आ रही है, so he like just get up from the table and he went over there. फिर उन्होंने कहा कि फिर वो वहीं पर ही थे, फिर वो वहीं पर ही रहे, फिर उन्होंने किसी से जाके बात किया और फिर वापस आ गए. So then at the next day one more thing happened when we were going in the mountains for a trip. So my grandfather just get up and house, यार यहाँ से smell आ रही है. फिर he just opened up the bonnet and checked something. उन्होंने देखा, उन्होंने सब किया. Then I observed each and every step. And the next day जब मैं अपने मामू के साथ घूमने गई, so I like felt the same scent and I told him that there's something in the car. So observing is the very observing nice. and feeling through your senses कितना ज़रूरी है. यहाँ पे कितने कम लोग हैं जो अपने 5 सेंसेस के थ्रू काम करते हैं. तो वो स्मेल ने आपको रिमाइंड कराया कि हाउ यू कुड फिक्स दिस अर्लियर. और ये चीज़ें हम रील्स से नहीं सीखते हैं. ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करके सीखनी होती है. ये आपका मैसेज है. हाउ नाइस. एंड व्हाट इज योर सेकंड फेवरेट स्टोरी फ्रॉम दिस बुक? टेल मी. My second favorite story is, this is me and my sister Anaya. Yeah. So one day we were walking in the park and और हम लोग वहाँ पे जब वॉक कर रहे थे ना, तब हम लोग को एक फ्रेंड मिली. अच्छा. सही है, ये मेरी फ्रेंड थी. सही है, तो ना वो प्लग कर रही थी, वो फ्लावर्स को तोड़ रही थी. और फिर क्या हुआ? अच्छा, अब छोड़ दो, किताब छोड़ दो. अब आप मुझे बताओ फिर आपने क्या किया जब उसने फ्लावर्स प्लग किए? तो मैंने उसको बोला कि हम लोग तुम फ्लावर्स को नहीं तोड़ो. अच्छा. फ्लावर्स की भी एक जिंदगी होती है, प्लांट्स की भी जिंदगी होती है. हम लोग को जैसे हम लोग सब लिविंग थिंग्स हैं और हम सब लोग लिविंग बीइंग्स को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए. हम लोग को लिविंग थिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए. बिल्कुल. हम लोग को एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए. हम बात कर रहे हैं इज़ियाना एंड अनाया से, जो कि 2 बहनें हैं और यंगेस्ट ऑथर्स हैं. एक 13 साल की है, एक 7 साल की है. एंड यू नो दोनों ने किताब लिखी है. एंड आई रियली लव हाउ लॉन्ग दे हैव कम. एंड यू नो एक्चुअली अनाया हमें अभी यही बता रही थी कि शी हैज़ रिटन रील टू रिवील. रील टू रिवील से मतलब ये कि यू नो शी इज़ प्लेइंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, कि हम रील्स देखते रहते हैं बट रियल ऑब्जर्वेशन आती है रियल लाइफ ज़िंदगी से, जो कि आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. एंड देन वी हैव इज़ियाना ओवर हियर, जो कि बात करनी थी अबाउट हाउ शी लव्स एनिमल्स एंड हाउ एक डॉग जो था वो एक मामा कैट को स्केयर कर रहा था, एंड हाउ उसने वो ऑब्जर्व किया और रियलाइज़ किया कि कितना ज़रूरी है कि हम आपस में एहसास रखें. सिमिलरली जब उसकी दोस्त फूल तोड़ रही थी तो उसको अच्छा नहीं लगा. तो देखिए इस यंग एज से जब हमें इन चीज़ों की रियलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन होती है तो हम कितनी अच्छी स्टोरीज लिख सकते हैं और हम कितना सीख सकते हैं और कितना इंस्पायर हो सकते हैं. आई होप आप लोगों को भी ये सेगमेंट इंस्पायर करे. इसी नोट पे अनाया, इफ़ आई वर टू आस्क यू, आपको अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं राइट? तो ये अवार्ड्स किस तरह रेलिवेंट थे आपके लिए, किस तरह मैटर करते हैं? टेल अस. ये अवार्ड्स मैंने बहुत सारी जगहों से लिए. जैसे मैंने अवार्ड हासिल किया था वुमेन डिग्निटी अवार्ड, एंड मैंने वो इसलिए लिया था बिकॉज एंड ऑल्सो ऑन बिस टुडे प्लेटफॉर्म. मैंने वो इसलिए लिया था अवार्ड क्योंकि मैं जो थी ना, आई वॉज द यंगेस्ट ऑथर ऑफ पाकिस्तान, एंड एवरीवन और सब चाहते थे कि सब मुझे मोटिवेट करे. और तो मुझे एक अवार्ड मिला बिस टुडे से, जैसे आई वॉज अ यंग इंटर्नशिप, एंड माई स्कूल ऑल्सो सपोर्टेड मी अलॉट, एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी लाइक दे ऑल्सो सपोर्टेड मी, एंड उन्होंने भी मुझे अवार्ड्स दिए थे बहुत सारे. एंड ये अवार्ड्स मेरे लिए इस तरह मायने रखते कि इन अवार्ड्स को देख देख के अब मैं आगे और लिखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और लिखूँ और लोगों को और मोटिवेट करूँ कि वो भी लिखें और अपने थॉट्स शेयर करें. क्योंकि आप जब आपका जो वो होते हैं ना, एक हथियार बोलते हैं जिसको, वो आपका पेन और पेपर हो सकता है. जैसे मेरा वही था, मैं एक पेन और पेपर लेके बैठती थी और वो 1-2 चीज़ों ने मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी पूरी ज़िंदगी पे इफेक्ट कर लिया. हाउ अमेजिंग इज दैट, हाउ अमेजिंग. एंड यू नो इज़ियाना, आप भी लुक फॉरवर्ड कर रही हो अपेरेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, यू नो, तो हाउ इज़ दैट कमिंग अलोंग? कैसा फील होता है आपको अबाउट दिस? मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे बहुत प्राउडली फील होता है कि मैं अभी तक यहाँ पे आई हूँ और मैं आगे और कितनी बुक्स लिख पाऊँगी. तो मैं और ऊपर जाके ना अपनी बहन के साथ भी बहुत सारे अवार्ड्स के अंदर जा सकती हूँ. जाती हो? वाह. और फिर कैसा फील होता है जब, आई मीन, योर पेरेंट्स फील प्राउड?
Yes, they feel very proud. They feel very proud. And Anaya, तो आपकी inspiration क्या है घर में? Your mom, your dad, who encourages you more कि आप इस तरह का काम करो या आप किताबें लिखो? कब पता चला आपको करना है ये? मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपको कुछ पेजेस लिख कर लाने, जो हमने मैगजीन में, मैंने सोचा यार मेरे अंदर कोई टैलेंट तो है, बिकॉज मैं बचपन से, जब से मैं 6 साल की थी ना, तब से बहुत सारे पोम्स और स्टोरीज एंड लिखते गए। जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे सेंटेंसेस बनाने के लिए, तब मैं पूरी स्टोरीज और पोम्स लिखती थी। वाओ। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ ऐसा, फिर मैंने ना एक लेआउट बनाया, एक लेआउट पूरा पेपर में बनाया, देख मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, आजकल के जनरेशन को क्या सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी बुक का जो टाइटल है रील टू रिवील, अब हम रील हुए कपड़े से ले लेते हैं, सही है, एक कपड़े से तशबीह दे देते हैं दैट इफ़ यू टेक अ क्लॉथ, सो इट्स ओनली ऑर्डिनरी क्लॉथ और थ्रेड, इफ़ यू टेक अ थ्रेड, बट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद द प्रॉपर थ्रेड, और इफ़ यू टेक अ थ्रेड इट्स कनेक्टेड विद द प्रॉपर क्लॉथ, सो इट कैन बिकम अ $1 million ड्रेस। सो व्हेन अ पर्सन इज़ अलोन, उसके पास कोई मेंटोर नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। लेकिन अगर उसके पास मेंटोर आ जाता है कोई प्रॉपर, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। Okay, how lovely. And you have mentor? Yes, I think that my parents are my best mentors, like my mother, father and my grandmother, because they support me a lot and a lot. Of course. And what about you, Izyana? About me, like आपके मेंटोर कौन है? आप किसको लुक अप करती हो? मामा को? मैं अपनी बहन को लुक आउट करती हूँ। जब मेरी बहन अवार्ड्स में जाती है तो मैं उसके साथ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कभी मैं भी यहाँ पे आऊँगी और मैं भी कभी यहाँ से एक अवार्ड लेके घर पे आऊँगी और मेरे फैमिली मेम्बर्स कितने खुश होंगे। हाँ, पर आई एम श्योर आपके फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी आपसे बहुत खुश होते होंगे, है ना? हाँ। एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी आप कर रही हो, है ना? अब और होंगे, और आप अवार्ड शो में जाती हो अपनी बहन के साथ, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी क्या लिखोगी बताओ? कभी किसी रैबिट के बारे में स्टोरी लिखी है? मैंने पोम लिखी है उसके बारे में। रैबिट के बारे में? हाँ। सुना दो। आप कह रही थी ना आपको सारी स्टोरीज और पोएम्स याद हैं, देखना भी नहीं पड़ता। Rabbit is white, rabbit hops, rabbit is white, rabbit That's okay, हाँ। Rabbit makes house, rabbit jumps, rabbit eats food. Yeah. Like everyone eats food. Yeah, but only carrots. living things. Yeah, rabbits love carrots, right? Yes. अच्छा, और कभी रैबिट हुआ है आपकी जिंदगी में? रखा है आपने कभी रैबिट? नहीं, मैंने रैबिट देखा है, मैंने रैबिट को टच किया है, मगर कभी मैंने रैबिट को फूड भी खिलाया है, मगर मैंने कभी रैबिट को अपने घर पे नहीं रखा। ओह, ओके। एंड व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? इनाया, आप क्या अपने फ्यूचर में देखती हो कि मैं अब क्या करना चाहती हूँ? मैं जो हूँ अभी अपनी नेक्स्ट बुक लिखने वाली हूँ, जो अभी आइंदा आने वाले कुछ महीनों में पब्लिश हो जाएगी। उस बुक के अंदर मेरी अगली बुक का नाम है सी वर्ल्ड फ्रॉम आवर आइज। उसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जो गरीब है और जो अमीर है, दोनों के बीच पे आई एम राइटिंग द थ्योरी दैट द लाइक पुअर पीपल, यू कैन से, जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर सेटिस्फाइड और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हैप्पी है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो हर वक्त लाइक सोचते हैं कि हमें पैसा है और ये सब, तो वो लाइक दे आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड देन द पुअर पीपल। सो माई न्यू बुक आई एम राइटिंग एंड द नेम इज सी वर्ल्ड फ्रॉम आवर आइज। उसके अंदर मैं यही सब बताई, जैसे उसके अंदर छोटी सी एक स्टोरी है, एड हाफ कप राइस। आई सैट लाइक मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी एंड मैं उनकी जो घर में काम नहीं करते उनकी बेटी के साथ बैठी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा आपके लिए क्या है हैप्पीनेस, तो उसने मेरे लिए कहा मेरे लिए हैप्पीनेस वो बिरयानी है जो आपकी नानी ने मेरे लिए भेजी थी। फिर मैंने वो नोट किया, मैं पिछले गई 4-5 दिन पहले मेरी नानी ने मेरे लिए दावत की थी ना, मेरे फैमिली की दावत की थी, तो उन्होंने उसके लिए बिरयानी बनाई थी, वो बच गई, फिर वो फ्रिज में पड़ी रही। फिर 4 दिन बाद उस मासी के पास गई, फिर उसने पूरा दिन काम करके उसको हर जगह लेकर अपनी बेटी को दिया, वो उसके लिए हैप्पीनेस थी। और जब हम एक अमीर बंदे को देखते तो उसके लिए हैप्पीनेस लाइक आई नो। सो आई थिंक ये आपने बड़े अच्छे तरीके से पुट फॉरवर्ड किया है कि मतलब यू नो
हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो, Yes. कि आप किस हाल में बेसिकली खुश रहते हो, और सिंपल लोग सिंपल चीज़ों में खुश रहते हैं, और यू नो डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट लोग ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं शायद ज़्यादा खुश रहने के लिए। अगेन दैट्स अ ग्रेट थॉट टू लर्न फ्रॉम। ऑलराइट, एंड अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं लास्ट सेगमेंट ख़त्म करने से पहले ज़ियाना, कि 3 टिप्स आप मुझे बताओ एक अच्छी किताब लिखने के लिए, तो आप क्या टिप्स दोगी? मैं कुछ टिप्स दूंगी, जैसे कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे रीड करके सीखते हैं। तो अभी एआई का ज़माना आ गया, तो हम लोग सुन के भी कर सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि हम लोग रीड करें, ताकि हम लोग ज़्यादातर मोबाइल से दूर रहें। तो हमें रीडिंग से भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो हमें पहले तो मुश्किल लगेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बुक्स रीड करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और फिर इजी हो जाएगा किताब हाँ। लिखना उसके लिए। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। इसका मतलब ये कि अगर हम रीड करें तो हम राइट भी कर सकते हैं।